میں مولانا عبدل منان صاحب صدر جمعیت علماء شراوستی، جنرل سیکریٹری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات، تفصیل تو بہت لمبی ہے، لیکن ہمارے سیکریٹری صاحب کا حکم ہے 3 منٹ میں اپنی بات بتائیں۔ دوستو، بہت دکھ اور درد کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ جب سے اس مجلس میں بیٹھا ہوں ہمارے سامنے بہت ساری قیمتی باتیں آ چکی ہیں۔ ان میں ابھی تک جو باتیں آئی ہیں وہ یہ ہیں کہ اپنے ضلع کے ڈی ایم اور ذمہ دار حضرات سے ملاقات کی جائے، لیکن میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ وہ ضلع جو متاثر ہو چکا اب ملاقات کی شکل بھی ختم ہو چکی میرے سمجھ کے اعتبار سے۔ ضلع شراوستی ایک ایسا ضلع ہے جہاں 297 مدارس ہیں، جن میں 192 مدرسے ایسے ہیں جو غیر مانیتا پراپت یعنی مکاتب اور مدارس ہیں، اور 192 مدرسے ایسے ہیں جو 102 وہ مانیتا پراپت ہیں۔ جب شراوستی میں بند کرنے کی شکل اور صورت آئی سامنے، تو اس میں ایس ڈی ایم مہودے وغیرہ جو تحصیل وائز ہوتے ہیں، وہ پہلے اور دوسرے دن ان کی کارروائی اس طرح کی رہی ہے کہ بغیر کسی طرح کے کوئی کاغذ دیکھے ہوئے سیدھے جا کر کے پوچھتے تھے کیا مدرسہ ہے؟ بند کرو۔ مانیتا ہے؟ نہیں ہے صاحب، بند کرو۔ مانیتا ہے؟ ہاں مانیتا ہے صاحب۔ استھائی ہے؟ استھائی ہے۔ اگر کہہ دیا کہ استھائی ہے تو بند کرو۔ اور جن کا استھائی تھا انہوں نے کہا صاحب میرا یہ پیپر دیکھ لیجئے، میرا تو استھائی ہے۔ اس کو کہا اس کو رکھو، میرے بس میں نہیں، مجھے آگے سے آرڈر ملا ہوا، جاؤ ڈی ایم صاحب سے ملاقات کرو۔ اب ہمارے شراوستی ضلع کا صورت حال یہ ہے کہ 297 مدارس میں مشکل سے 10 سے 12 مدرسے ایسے ہوں گے جو اس وقت کھلے ہوئے ہوں گے، باقی سارے مدرسے بند ہیں۔ میں درخواست کرنا چاہتا ہوں آپ حضرات سے کہ دعا فرمائیں، اور اس کی جو دوا شکل بن سکتی ہے اپنے اکابر سے درخواست کروں گا کہ ہمارے شراوستی ضلع کا خاص طور پر اور ہمارے بہرائچ کے ضلع کا کچھ حصہ جو بارڈر سے لگا ہوا ہے، یہ علاقہ جو ہے بہت زیادہ متاثر ہے۔ شراوستی میں اس وقت سناٹا پھیلا ہوا ہے، بچے کھیل کود میں لگے ہوئے ہیں۔ بس وہی بچے جو حفظ وغیرہ یا عربی پڑھ رہے تھے وہ بازو یعنی بغل کے ضلع بہرائچ کے مدرسوں میں جا کر کے انہوں نے داخلہ لے لیا، لیکن مکاتب کے بچے بالکل ایک دم ان کی تعلیم ٹھپ پڑی ہوئی ہے۔ سارے مدرسوں میں تالا لگا ہوا ہے۔ کچھ مدارس ایسے ہیں جو سیل کر دیے گئے ہیں، اور باقی مدرسوں میں تالا لگا ہوا ہے۔ اب کوئی مدرسہ چل نہیں رہا 10 سے 12 کے علاوہ۔ دعا فرمائیں۔ ضلع لکھیم پور سے گزارش کر رہا ہوں مولانا طارق انور صاحب سے، وہاں بھی کچھ مدارس کے ساتھ کارروائی ہوئی ہے، وہ 3 منٹ میں جو ہے اپنی بات آ کر کے رکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ جہاں کچھ تو علاقہ محدود کر دیا گیا ہے بارڈر کا، پہلے یہ بتایا گیا تھا کہ 10 کلومیٹر جو بارڈر سے لگے ہوئے مدارس ہیں وہی بند کیے جائیں گے، پھر 15 کلومیٹر بتایا گیا، پھر یہ ہے کہ اب 50 کلومیٹر کے رینج میں جو اس سے لگے ہوئے ہیں وہ بند کرنے کا ان کا وہ ہے۔ خاص طور سے جو اور بھی مدارس ہیں وہاں پولیس والوں نے اپنے اعتبار سے، اب چاہے وہ اوپر سے ان کو آرڈر ملا ہو نہ ملا ہو، لیکن انہوں نے اپنے تئیں جا کر کے تھانے سے پولیس والوں کو بھیج کر کے اپنا ان کے باعلاج اور جو کاغذات ہیں، کتنے بچے رہتے ہیں، کتنے بچے ہندو ہیں، کتنے مسلم ہیں، کتنے ٹیچرز ہیں، کتنی لڑکیاں ہیں، کتنے لڑکے ہیں، یہ پوری رپورٹ اس سے پہلے سروے میں وہ لے چکے تھے اور اس کے باوجود پھر لے رہے ہیں۔ تو اس طرح سے مدارس کو پریشان کیا جا رہا ہے، اور انشاءاللہ ہمارا عزم اور ہمت کرتے ہیں اپنا کابرین کے انشاءاللہ مشورے سے کہ جو بھی ہوگا انشاءاللہ ہم لوگ مقابلہ کریں گے۔ میں ہلال احمد قاسمی جمعیت علماء لہر پور کا جنرل سیکریٹری ہوں۔ ہمارے ضلع میں ابھی
3-4 दिन पहले डीएम ने सारे डीएमओ और इसी तरह तमाम सारे अधिकारियों को जमा करके उन्होंने सख्त आदेश दिया कि जो प्राइवेट स्कूल चल रहे हैं या शिक्षा स्थान चल रहे हैं उन्हें बंद कर दिया जाए। उसके बाद से मुसलसल जो उधर से वाबस्ता अफराद थे उनसे खबरें आने लगी कि आप लोग मदरसा बंद कर दीजिए वरना आपके मदरसे के खिलाफ कार्रवाई होगी। इसी ज़िम्न में बिस्वा तहसील के पास एक मदरसा बैतुल उलूम है, वहाँ एक साहब का फ़ोन आया बीएसए के अधिकारी की जानिब से कि आप मदरसा बंद कर दीजिए वरना हम लोग आ रहे हैं चेक करने के लिए। करीब 1 घंटा गुजर गया, लोग इंतज़ार करते रहे। हमने इन लोगों को कापियाँ पहले से भेज दी थी, सुप्रीम कोर्ट की और जमीयत की तरफ से जो भी थी भेजी गई थी। इन्होंने बात की कि आप आइए, सारे कागजात हमारे पास मौजूद हैं, लेकिन वो नहीं आए। अलबत्ता सीतापुर शहर से मुत्तसिल एक इलाका है, एक मदरसा था। उस सिलसिले में ये बाद में मालूम हुआ कि वो मदरसा जिस ज़मीन पर बना था वो सरकारी ज़मीन थी, वो मदरसा खाली करा लिया है। उसके अलावा कोई अभी तक सही तरीके से कोई कार्रवाई तो नहीं हुई। अलबत्ता चारों तरफ ज़िले में उनके अफराद घूम रहे हैं और ये कह रहे हैं मदरसा बंद कर दीजिए। इस तरह की हमारे ज़िले में कार्रवाई हुई। आखिर में एक गुजारिश मैं अपनी तरफ से कर रहा हूँ, जमीयत के अफराद यहाँ बैठे हुए, इससे पहले लीगल सील बनी हुई थी। हम ये चाहते हैं कि उस लीगल सील को तहसील और ज़िला स्तर की बुनियाद पर इतना एक्टिव कर दिया जाए कि हर जगह मदारिस के जो कानूनी मसाइल आइंदा आ रहे हों वो खुद हम ज़िला और तहसील के एतबार से उसको हल करने की कोशिश करें। मुफ्ती हिलाल साहब, लीगल सेल के लिए आपने जो बात रखी है, जमीयत उलमा तो मुद्दत से ज़िलों से और सूबाई जमीयतों से लीगल सेल मुतहर्रिक कराने के लिए कह रही है। अब आपकी तहसील का मसला है तो अपना लीगल सेल आप मुतहर्रिक करेंगे ना, उसके लिए जो है मरकज नहीं आएगा। मैं अब गुजारिश कर रहा हूँ, हमारे लखीमपुर खीरी में कुछ इलाकों में कार्रवाई हुई, वहाँ जमीयत उलमा के लोगों ने मुलाकात भी की। तो लखीमपुर खीरी से जनरल सेक्रेटरी मौलाना मुहिउद्दीन साहब तशरीफ़ लाए हुए हैं कल से। मैं मौलाना से गुजारिश कर रहा हूँ तशरीफ़ लाए और पहले जो सूरत हाल पेश आई उसको बताएं और फिर अपनी मुलाकात का भी मुख्तसर सा खुलासा रखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2024 में कुछ मदारिस को नोटिस भेजे गए, तो ज़िला जमीयत उलमा के सदर मोहतरम और हमारे ज़िले के हज़रत मौलाना इस्लामुल हक साहब, अफजल मियां साहब, मैं और कई लोग मिलकर के डीएम से मुलाकात की। डीएम साहब ने कहा देख लेंगे और नोटिस आ चुके थे। तो उसके बाद फिर कोई नोटिस नहीं आया। डीएम साहब से ये भी बात कही गई कि जो नोटिस आ चुके हैं उनके जवाबात के बारे में उन्होंने कहा क्योंकि नोटिस आ चुके हैं आप जवाब दे दीजिए और जो डॉक्यूमेंट्स आपने मुझे दिए हैं वही डॉक्यूमेंट्स लगा दीजिए। ये 2024 की बात है। 2025 में 8 मदरसे बंद किए गए हैं और वो हजरत सब सरहदी इलाके हैं। और मैं ये समझता रहा क्योंकि इस वक्त मुल्क जंगी हालात में है तो कोई जोखिम नहीं उठाना चाहता है तो मदारिस के ऊपर निगाह है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर अभी परसों की बात है कि तहसील मोहम्मदी के असबा रसूलपुर के मुत्तसिल 2-3 गांव हैं, वहाँ एक मस्जिद के खिलाफ नोटिस आ गया, 2 मदारिस के खिलाफ नोटिस आ गए और ये कहा गया कि आप इसमें से अपना लुट पुट उठा लीजिए, उसमें ताला पड़ जाएगा। इस सिलसिले में हम लोग डीएम के साथ गए थे, फिर गए तो डीएम साहब ने कहा कि आप लोग जाइए हम देख लेंगे। तो फिर हमने उसी वक्त मशवरे में ये बात तय की कि 1 हफ्ता तक डीएम साहब की बात का इंतजार किया जाए और फिर 8 दिन के बाद फिर यही मुलाकात करेंगे।
तो पिछली जुमेरात को फिर सब लोग इकट्ठा हुए। तो डीएम साहिबा से मिलने के बाद जो 8 दिन का वक्त हुआ उसमें भी 2 मदरसे बंद किए गए। तो ये सूरत हाल है। कुछ तो जगहें ऐसी हैं जहाँ मदरसे ग्राम समाज की ज़मीन पर बने हैं, हमारा घूरा उनका घूरा, भाई मदरसा बना लो। कुछ मसाजिद ऐसी हैं, इसके अलावा मान्यता के नाम पर, इसके अलावा कुछ सुनते ही नहीं है अधिकारीगण और मदरसा बंद। आज सूरत हाल ये है कि 8 मदरसे तो वो हैं जिनको सील किया गया और पूरी पट्टी ज़बानी कह के गए हैं मदरसा बंद करो, नहीं बंद करोगे तुम अंजाम को भुगतने के लिए तैयार करो। तो पूरी पट्टी के मदरसे बंद है, ये सूरत हाल है। अब दोबारा हम लोग डीएम से मुलाकात करें या जो मदरसे सील किए गए हैं, हमने तो ये गुजारिश की थी जो मदरसे सील किए गए हैं उनको दोबारा संचालित किए जाने की इजाज़त दे दें, हुक्म जारी कर दें, लेकिन कुछ हुआ नहीं है। इस वक्त एक आम इलाके में खौफ, हरास और बेइज्जती और रुसवाई का माहौल है, जिससे हम लोग बहुत परेशान हैं। ऐसे मौके पर हम अपने अकाबिर से, अपने कायदीन से मशवरे के ख्वाहिशमंद हैं। जैसा हुक्म होगा उस पर इंशाअल्लाह हम अमल करेंगे। वाखिर दवाना। मैं इसके बाद जो है इजहार ख्याल के लिए जमीयत उलमा मशरिकी उत्तर प्रदेश जोन के सदर हज़रत मौलाना हाफिज़ अब्दुल हई साहब मिफ्ताही दामत बरकातुहुम को मदू कर रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ बावक़ार उलमाए किराम और जमीयत उलमाए हिंद के सिपाहियों जो दूर दराज से तशरीफ़ लाए हुए हैं, आज की यह मजलिस तहफ़्फ़ुज़ मदारिस कन्वेंशन के नाम से मुनाक़िद की गई है, जो ज़ेर इंतज़ाम वस्ती जोन के तहत है। मेरे जोन मशरिकी उत्तर प्रदेश में जो ये उत्तरी पट्टी जो है, जो अज़ला नेपाल से मिलते हैं, उन्हीं अज़ला की खबर हैं कि उन अज़ला में मदारिस को बंद किया जा रहा है और बंद किया गया है। अभी आप हज़रात के सामने बहुत सारी रिपोर्टें आई हैं कि बहुत से अज़ला में ख़ास तरीके से अभी श्रावस्ती ज़िले की रिपोर्ट आप हज़रात के सामने आई, या इसी तरीके से उससे मुत्तसिल और भी जो अज़ला हैं उनके मदारिस के सिलसिले में हैं परेशानियाँ, लेकिन जो वजूहात सामने आ रही हैं, मुझे अच्छी तरह याद है कि यहीं कानपुर के अंदर हज़रत मौलाना मतीनुल हक साहब उसामा नगरल्लाह मरकदहू ने सन 2017 में तहफ़्फ़ुज़ मदारिस कन्वेंशन का इनेकाद किया था। उस वक्त बहुत सारी बातें आई थी और बहुत सारी हिदायत जमीयत उलमा हिंद की तरफ से आई थी, लेकिन मैं तो समझता हूँ कि जहाँ हुकूमत की ज़्यादतियाँ हमारे साथ हो रही हैं, वहीं हमारी तरफ से भी बड़ी कोताहियाँ हो रही हैं। हम अपने तौर पे तैयारियाँ नहीं कर पा रहे हैं, जो हिदायत जारी हो रहे हैं उस पर हम अमल पैरा नहीं हो रहे हैं। ज़रूरत इस बात की है कि जो हिदायत दी जाएं, जो बातें बताई जाएं, उन पे हम सारे लोगों को मुस्तैद रहना चाहिए और उन सारे निकात पे गहरी नज़र रख कर उनके इंतजाम करने चाहिए। हमारी तरफ भी आजमगढ़ और मऊ के अंदर ही सर्वे हुआ है, खुद मेरे मदरसे का सर्वे हुआ है। अधिकारी आए थे, 3 कागजात मुझसे मांगा उन लोगों ने। सबसे पहले उन्होंने रजिस्ट्रेशन का कागज़ मांगा, दूसरे नंबर पे मान्यता का कागज़ मांगा और तीसरे नंबर पे उन्होंने जो ज़मीन है, ये जो हमारे पास इमारतें हैं, उनके कागजात हमसे मांगे। हमने वो सारे कागजात उनको मुहैया कर दिए। तो इस तरीके से जहाँ कोई दिक्कत है
आज 8 साल का ज़माना गुजर गया। इतने दिनों में हम लोगों को भी चाक व चौबंद रहना चाहिए और होशियार रहना चाहिए, इस पर फिक्र करनी चाहिए। और उसी के साथ साथ एक मैं आप हज़रात के सामने एक बात रखना चाहता हूँ कि हम सारे लोग ज़ाहिरी असबाब और ज़ाहिरी परेशानियों पे तो इतना शोर और इतना ध्यान है, लेकिन कम से कम हम सारे लोगों को अपना भी मुहासबा करना चाहिए कि हम अंदर से कितनी फ़िक्र कर रहे हैं और हमारे दीन और इस्लाम के जो अहकामात हैं उस पर हम कहाँ तक अमल पैरा हैं और उसमें हम कहाँ जा रहे हैं, इस पर भी हम सारे लोगों को ध्यान देने की ज़रूरत है। इसलिए हो सकता है कि सिर्फ हमारी इन कोताहियों की बुनियाद पे कि हमारी आजमाइशें हमारे सामने आ रही हैं, इसलिए हम सारे लोगों को इन बातों पे भी ध्यान देने की ज़रूरत है। अल्लाह तबारक व तआला हम सारे लोगों को इन सारी बातों पे जो आज कही जा रही हैं तवज्जो की तौफीक अता फरमाएं। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हरदोई से तशरीफ़ लाए हुए हज़रत मौलाना मुफ्ती बिलाल साहब दामत बरकातुहुम तशरीफ़ फरमा है। मैं हज़रत वाला से गुजारिश कर रहा हूँ तशरीफ़ लाएं और तहफ़्फ़ुज़ मदारिस कन्वेंशन में अपने ख़यालात का इज़हार फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाह अहलिही वस्सलातु अला अहलिहा अम्मा बाद। सर कटते रहे पर मशाले जलती रहीं, सर कटते रहे पर मशाले जलती रहीं, रस्म जो हमसे चली बाइस इम्तिसाल बनी। तहफ़्फ़ुज़ मदारिस कन्वेंशन के मदरसा अशरुल मदारिस की तरफ से भेजा गया मैं खादिम इतना ही अर्ज़ करूँगा कि हमारे बातिन और हमारा ज़ाहिर, हम अपने बातिन की ख़राबी को अपने ज़ाहिर से भी बहुत सी मर्तबा जान लेते हैं। यकीनन कोई ना कोई ऐसी बात ज़रूर है जिसकी वजह से हम हालात का शिकार हो रहे हैं। हमें अपने जहाँ ज़ाहिर की फ़िक्र है वहाँ अपने उस बातिन की भी फ़िक्र करना चाहिए, और बातिन से मुराद हमारे मदारिस के जो दाखिली मामलात हैं उनके ऊपर भी हमें नज़र षानी करना चाहिए और देखना चाहिए। दूसरी बात, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि हमारे अकाबिर, हमारे बड़े, हमारे सरपरस्त अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद हैं। अल्लाह ताला इनका साया तादेर कायम और दायम रखे। हम लोगों को जहाँ इस बात की फ़िक्र करना है कि हमारा ज़ाहिर भी सही रहे, हमारा बातिन भी सही रहे, वहीं ये भी शुक्र अदा करना है कि हमारे बड़े मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे रहनुमाई करते आ रहे हैं, रहनुमाई करते रहेंगे, और हमें अल्लाह ताला उनकी हिदायत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैं गुजारिश कर रहा हूँ हमारे जमीयत उलमा इटावा के सदर और अभी जो हमारी मरकज़ी कमेटी बनी है उसके क्लस्टर के कन्वीनर और मदारिस अरबिया एसोसिएशन के अहम ओहदेदार तारिक शमसी साहब से, वो भी जो है वक्त का ख्याल करते हुए इजहार ख्याल फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व अहले बैतिहि अजमईन। हज़रत सदर मोहतरम, दीगर उलमाए किराम, ज़िम्मेदारान मदारिस, बहुत सी बातें हम लोग देर से सुन रहे हैं। सिर्फ एक अज़्म हमको करना है कि अपना हौसला नहीं हारेंगे। अगर हम हौसला हार जाएंगे तो बातिल जीत जाएगा, और बातिल का जो ये हमला हो रहा है ये सिर्फ इसीलिए हो रहा है कि हम हौसला हार जाएं, हिम्मत हार जाएं और घर बैठ जाएं। तो इसके लिए सबसे पहला आज़्म हमको ये करना है कि हिम्मत नहीं हारनी है, हौसला नहीं हारना है। हर कुर्बानी के लिए अपने आप को ज़हनी तौर पर तैयार रखना है। अभी जैसा कि हज़रत मौलाना ने फरमाया था, मुफ्ती ज़फ़र साहब ने,
कि फर्रुखाबाद में मदरसों ने लिख के दे दिया कि हम बंद कर रहे हैं। अभी एक किसी साहब ने और ये बताया कि लोगों ने मदरसे खुद बंद कर दिए। जी मैं हाजिर हुआ था उस मीटिंग में फर्रुखाबाद की, और यही बात अर्ज की थी कि बंद अपनी तरफ से नहीं करना है, उनसे तहरीर लेनी है, नोटिस लेना है। अभी जो शरावस्ती में मदारिस को नोटिस दिए गए, बंद किए गए, वहां तो बाज मदरसे अपनी तरफ से हाई कोर्ट गए और 14 तारीख का अभी इसी महीने एक मदरसे को उस नोटिस को कलादम किया हाई कोर्ट ने, लखनऊ बेंच ने, और मदरसे की सील खोलने का आर्डर दिया और ये कहा कि इनको बगैर सुने, इनको नोटिस दीजिए पहले और इनकी बात सुनिए ये क्या कह रहे हैं, तब मदरसा बंद करने, तब कोई अगली कार्रवाई कीजिएगा। तो उन लोगों ने हिम्मत जुटाई, आगे बढ़े, तो उनकी मदद हुई। तो अपनी हिम्मत हमको बरकरार रखनी है, हौसला बरकरार रखना। दूसरी चीज, हज़रत सदर मोहतरम की रहनुमाई और उनकी सरपरस्ती में इंशाअल्लाह ताला हम लोग भी एक तैयारी कर रहे हैं और 2 से 3 दिन के अंदर इंशाअल्लाह ताला हाई कोर्ट से मदारिस के लिए एक आर्डर आपके हाथ में आने की पूरी उम्मीद है। आज 1-2 दिन के अंदर रिट दायर हो जाएगी, लखनऊ बेंच के अंदर कोशिश की जा रही है, और उस रिट की बुनियाद पर और उस रिट के आर्डर की बुनियाद पर जो 14 तारीख को आया है, हमको एक बहुत बड़ा सहूलत मिलेगी और एक नज़ीर मिल रही है इंशाअल्लाह। तो अपने दाखिली निज़ाम को, जैसा कि बार बार कहा जा रहा है कि अपने दाखिली निज़ाम को दुरुस्त रखें और अफसरान से बात करने का हौसला रखें, उनके सामने डरे नहीं, दबे नहीं, घबराए नहीं। हमारे लोग साहब 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 करके बात को वहीं दबा देते हैं और जैसा वो कह रहे हैं वो करने लगते हैं। उनसे तहरीर मांगिए और अपनी बात रखिए। जो मेमोरेंडम और जो दस्तावेजात यहाँ से बताए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं, उनको खुद भी हासिल करने की कोशिश कीजिए, जद्दोजहद कीजिए। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की मदद आपके साथ रहेगी और हमारे निज़ाम को, हमारे इस सिलसिले को कोई दुनिया की ताकत ख़त्म नहीं कर सकेगी, बंद नहीं कर सकती इंशाअल्लाह ताला। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। बनारस से तशरीफ लाए हुए जमीयत उलमा मशरिकी उत्तर प्रदेश के जनरल सेक्रेटरी हज़रत हाफिज़ उबैदुल्लाह साहब दामत बरकातुहुम से गुजारिश कर रहा हूँ तशरीफ़ लाए और आज की तहफ़्फ़ुज़ मदारिस कन्वेंशन की नशिस्त में इज़हार ख़याल फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कहा गया है बड़ों की तरफ से, मैं आ गया हूँ और अकाबिर उलमा के सामने क्या कहना है, मगर बात जो भी पीछे आई है सब बातें हो चुकी हैं और अभी कानूनी तौर से जितनी बातें मौलाना अब्दुल्ला साहब फरमा रहे थे, मेरे ख़्याल में उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है और कोशिश करना, अभी हम लोगों ने कोशिश भी शुरू नहीं की है, कोशिश करना शुरू किया जाए, जितना होता रहेगा इंशाअल्लाह होगा और हालात तो आते रहेंगे। ईमान वाले हैं, आजमाइश आती रही है, आती रहेगी, पहले ज़माने में भी आई है, तो हमें हिम्मत से खूब पुख्ता इरादे के साथ, नेक नियति के साथ अपने कानूनी कामों को आगे बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। और एक बात आई थी कि मदरसों के अंदर इस्लाह की ज़रूरत है, जो अंदरूनी मामलात हैं इस पर बहुत ख्याल करने की ज़रूरत है। अब मदरसे के साथ साथ मैं ये भी कहता चलूँ कि हम लोगों को अपने अंदर भी इस्लाह की ज़रूरत है, हम लोगों को अपने अंदरूनी भी उस पर नज़र रखने की ज़रूरत है और कोशिश करनी चाहिए कि हमारे अपने अंदर का भी मामला सुधर जाए। तो इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि रास्ता आसान हो जाएगा। अल्लाह ताला हम तमाम लोगों की हाज़िरी को कबूल फरमाए और नेक नियति के साथ काम करने की तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कमेटी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के लिए बनी है, उसके कन्वीनर मुफ्ती कासिम रज़ी साहब तय हुए हैं और अभी आपको कई बार ये इस सिलसिले में बताया गया कि क्लस्टर बना करके मुख्तलिफ क्लस्टरों में कन्वीनर्स तय किए हैं और ज़िला वाइज कन्वीनर भी तय कर रहे हैं।
तो मुख्तसरन जो है उस सिलसिले में मुफ्ती कासिम रज़ी साहब यहाँ तशरीफ़ फरमा है, वो अपनी रिपोर्ट का कुछ मुख्तसर खुलासा पेश करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। इस वक्त जो तहफ़्फ़ुज़ मदारिस के उन्वान पर हम लोग जमा हुए हैं, देखिए ये लड़ाई जो हम लोगों ने लड़ना शुरू की है ये बहुत लंबी है और बहुत मुनज़्ज़म अंदाज में इस सिलसिले में हम लोगों को काम करना पड़ेगा और बार बार अलग अलग अंदाज में जमा भी होना पड़ेगा। इस ताल्लुक़ से अकाबिरीन ने बहुत मुनज़्ज़म अंदाज में काम करने की कोशिश की है। सबसे पहले एक मरकज़ी कमेटी बनाई जिसके अंदर हज़रत सदर मोहतरम जमीयतुल माहिन, हज़रत नाज़िम उमूमी जमीयतुल माहिन, ये हज़रात मौजूद हैं। फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड पर 14 क्लस्टर बनाए और हर क्लस्टर के अंदर 4, 5, 6, 7 अजला रखने की कोशिश की गई और हर क्लस्टर का एक कन्वीनर मुतय्यन किया गया सिर्फ इसी काम के लिए कि अगर मदरसे से मुताल्लिक़ कोई बात मालूम करनी है आपको तो आप फला साहब से राब्ता करें। फिर उसके बाद जब ये काम मुकम्मल हो गया तो फिर अगला मरहला शुरू किया कि ज़िली सतह पर एक बंदा हमें मिल जाए कन्वीनर के नाम पर, ताकि अगर पूरे ज़िले का कोई मसला हो मदारिस के ताल्लुक से तो तमामी हजरात उस बंदे से राब्ता कर लें। अब तक अल्हम्दुलिल्लाह 42 अजला में कन्वीनर का इंतखाब अमल में आ चुका है और बाकी में जारी है और क्लस्टर की सतह पर बहुत जल्द 2 मुशावरती इज्तिमा हो रहे हैं, इतवार को इंशाअल्लाह मुरादाबाद में और फिर उसके बाद जून के शुरू हफ्ते में मौलाना महराज साहब फरमा रहे हैं कि गोरखपुर में गालिबन करेंगे हम अपने क्लस्टर का और फिर उसके बाद मौलाना तारिक शमसी साहब कह रहे हैं कि ईद उल अजहा के बाद हम फौरन जो है इटावा में करेंगे अपने क्लस्टर का। बहरहाल हजरात अकाबिरीन आपके लिए बहुत ज़्यादा फिक्रमंद है कि आप हजरात जिस तरह अब जमा हुए हैं इसी तरह मुस्तैदी के साथ जब जब आपको बुलाया जाए तब तब आप हाजिर हो। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा।